Welcome back to the lecture series on computer graphics. These lectures are based on the GTU syllabus for Diploma in Information Technology. Till now, we have covered the following topics. Overview of computer graphics, then evolution of computer graphics, graphics standards like GKS, FIGS, FIGS Plus, CGI, CGM. After that, we studied about the applications of computer graphics in real life. In the applications part, we have discussed image processing, then movies and games, computer aided design, scientific visualization, training and education, e-commerce, computer art, graphical user interfaces, virtual reality, multimedia and advertisement. Then we discussed about the scanning systems, in which we discussed raster and random scanning. Within raster scanning, we also discussed some terms such as bitmap, pixmap, refresh rate, horizontal retrace, vertical retrace, interlacing, and we also compared the two scanning methods with each other. After that, we studied about the video display devices. In which we studied raster displays and random displays. We saw their simple architectures. Then we studied about cathode ray tube. We discussed some terms related to cathode ray tube such as persistence, flicker, fluorescence, resolution and aspect ratio. After that, we discussed color CRT, color cathode ray tube, in which we studied two methods. One is beam penetration method and the second one shadow mask method. Then we discussed flat panel displays. In flat panel displays, we saw that there are two types. One is emissive displays and the other one is non-emissive displays. Here we discussed plasma panels. We saw the characteristics, advantages and disadvantages of plasma panels.
Then we also discussed LCDs, liquid crystal displays, LEDs, and finally VGA, video graphics array. And today we will discuss about number 1, we will discuss about the hard copy devices, and number 2, we will discuss about the input devices. So let us start with the hard copy devices. So the first topic for today is half toning. What is half toning? You need to know the definition. What is half toning? So the definition is it is a reprographic technique that simulates continuous tone imagery through the use of dots. Varying either in size, in shape, or in spacing. So this is the definition. It is a reprographic technique that simulates continuous tone imagery through the use of dots, varying either in size, in shape, or in spacing. तो क्या होता है प्रिंटिंग में, जब किसी फ़ोटो को प्रिंट करना होता है तो फ़ोटो या इमेज को जब प्रिंट करना होता है तो उसमें हर एक डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं और वो एक कंटिन्यूअस टोन होता है. पर डिजिटल में तो डिस्क्रीट टोन्स होते हैं और एनालॉग में कंटिन्यूअस टोन्स होते हैं. ठीक है. तो अब क्या होता है, जैसे कि मास प्रोडक्शन, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में अगर कोई इमेज प्रिंट करना है तो उन्हें अपना कॉस्ट कटिंग करना पड़ता है. मतलब दे डोंट वांट टू प्रिंट एग्जैक्ट इमेजेस, उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा प्रिंटिंग का. तो वो लोग क्या करते हैं, आप लोग ने देखा होगा, इस तरह का फ़ोटो प्रिंट करते हैं यूजिंग डॉट्स एंड यूजिंग ओनली वन कलर, ओनली ब्लैक. ठीक है. मोस्टली किसी किसी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज कलर्ड होता है बट अंदर के सारे पेजेस मोस्टली क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं. सो दिस इज़ हाफ टोनिंग. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज प्रिंटेड यूजिंग हाफ टोनिंग. तो इसमें क्या होता है, डॉट्स होते हैं और अगर आप ठीक से देखो तो ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स डिफरेंट शेप्स के हैं और डिफरेंट स्पेसिंग है. जहाँ पे ज़्यादा कलर, ज़्यादा ब्लैक करना है वहाँ पे डॉट्स का स्पेसिंग या साइज़ जो है बहुत डेंस है, और जहाँ पे थोड़ा सा लाइट कर देना है वहाँ पे डॉट्स छोटे छोटे हैं या उनका स्पेसिंग अलग अलग है. तो दिस टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रिंटिंग इमेजेस इज कॉल्ड हाफ टोनिंग. ठीक है. द ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ कलर द मोर डॉट्स इज रिक्वायर्ड. और जहाँ पे कम कलर चाहिए वहाँ पे द लेस नंबर ऑफ डॉट्स इज रिक्वायर्ड. तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिजिटल हाफ टोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए कंटिन्यूअस टोन इमेजेस इनटू स्ट्रिक्टली black and white images such that
when viewed by the human visual system, the pattern creates an illusion of being a continuous shade of gray. ठीक है, तो किसी भी इमेज को हम हाफ टोन करके इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ओके, यूजिंग ओनली ए सिंगल कलर. इससे क्या होता है, खर्चा, कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है. Okay, so let us move to the next topic. Next topic is printers and the various type of printers. तो printers क्या होते हैं? What are printers? Printers are basically output devices, है ना. प्रिंटर से हम लोग टेक्स्ट या फिर इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं. So printers are used to produce paper output और hard copy output. इसको hard copy भी बोलते हैं. Printers can be classified into two types. One type is impact printers. Another type is non-impact printers. ठीक है, दो टाइप के होते हैं. सो इन इम्पैक्ट प्रिंटर द प्रिंटिंग हेड विल टच द पेपर. इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो भी प्रिंटिंग हेड है इट विल टच द पेपर ऑन विच इट इज बीइंग प्रिंटेड. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर इज नॉट टच्ड. ये डिफरेंस होता है इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में. ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग इज समवट सिमिलर टू टाइपराइटर. टाइपराइटर में क्या होता है, जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तो उस की का जो कॉरस्पॉन्डिंग हेड है वो जाके रिबन को स्ट्राइक करता है और वो पेपर में छप जाता है उसका पैटर्न. सिमिलर हैपन्स विथ इम्पैक्ट प्रिंटर. सो एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट printer will be dot matrix printer. I will talk about the different types in just a while. An example of non-impact printers will be laser printer, inkjet printer, etc. ठीक है, जिसमें पेपर जो है उसको टच नहीं करता है प्रिंटिंग हेड और जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है. Okay. Now what is dot matrix printer? Let us talk about what is dot matrix printer. Let me show you one visual. Have you seen such type of printer? बहुत सारे जगह पे देखा होगी लाइन बाय लाइन, समथिंग लाइक रास्टर स्कैनिंग. रिमेंबर रास्टर स्कैनिंग डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप्स रो बाय रो. सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी समवॉट दैट टेक्निक इज यूज्ड. लाइन बाय लाइन वो कैरेक्टर को रो बाय रो प्रिंट करते जाता है. तो अगर तुम्हारा एक लाइन बड़ा है थोड़ा, तो वो क्या करेगा, बहुत बार में आधा आधा करके जितना हो सके उतना करके रो बाय रो प्रिंट करता जाएगा. दिस इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, सो द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज a print head containing a rectangular array of protruding
वायर पिंस। ठीक है, तो जो प्रिंट हेड है उसमें क्या है, कुछ वायर पिंस है, एरे ऑफ वायर पिंस। तो जो भी पैटर्न हमें चाहिए, तो जो भी पैटर्न चाहिए उस हिसाब से कुछ पिंस अंदर आ जाते हैं और कुछ पिंस बाहर आ जाते हैं, एंड दैट स्ट्राइक्स द रिबन विच क्रिएट्स द पैटर्न ऑन द पेपर अल्टीमेटली। ओके, so individual characters or graphic patterns are obtained by रिट्रैक्टिंग मतलब वापस ले लेना, घुसा लेना, certain pins so that the remaining pins can form the pattern। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, मोस्टली सभी ने देखा होगा। लेज़र प्रिंटर आजकल बहुत पॉपुलर है, ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस में दिस टाइप ऑफ प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, है ना। मोस्टली एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, वेरी पॉपुलर nowadays। Okay, so in laser printer what happens, a laser beam creates a charge distribution on a rotating drum coated with a photoelectric material such as selenium। ठीक है, and the toner is applied to the drum, which is then transferred to the पेपर। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, जो भी पैटर्न बनाना है हमको, जो भी इमेज या टेक्स्ट जो भी प्रिंट करना है पेज में, वो पैटर्न पहले बनता है। कैसे बनता है, वो एक लेज़र से बनता है, एंड दैट वन रोटेटिंग ड्रम इज़ देयर कोटेड विथ अ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल,
ठीक है। तो लेज़र वो पैटर्न्स उस ड्रम में बना देता है यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और फिर जो टोनर है, टोनर में वो कलर रहता है, देखा होगा मोस्टली लेज़र प्रिंटर्स जो है मतलब ऑफिसेज वगैरह में वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो टोनर में ब्लैक कलर होता है। तो फिर टोनर से वो ब्लैक कलर अप्लाई किया जाता है ड्रम में, और जो जाके अल्टीमेटली पेपर में छप जाता है जो भी पैटर्न है। तो इस तरह से प्रिंटिंग हो जाती है। इसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जब पॉपुलर नहीं था उतना, तो सबसे पॉपुलर था इंकजेट प्रिंटर। तो इस तरह का प्रिंटर देखा होगा, ये है इंकजेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है, 4 कलर्स डालने पड़ते थे। एक सी सायन, एम फॉर मैजेंटा, वाई फॉर येलो एंड के फॉर ब्लैक, CMYK। CMYK का जो कलर स्कीम है वो यूज़ होता है इंकजेट प्रिंटर में। तो इंकजेट प्रिंटर में it produces output by squirting the ink in horizontal row across a roll of paper wrapped on a drum। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली इंक जो है उसको छिड़क के, पेपर के ऊपर छिड़क के पैटर्न्स बनाए जाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक स्ट्रीम is deflected by an electric field to produce the patterns। Okay, next one is electrostatic printers, something like this। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का एग्जाम्पल है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर में क्या होता है, लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट आर द यूजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, so what it does is it places a negative charge on the paper। One complete row at a time। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, एक निगेटिव चार्ज कर देता है पेपर के रो को, एक कंप्लीट रो को। देन व्हाट हैपन्स,
then the paper is exposed to a toner. ओके, समवट लाइक जैसा टोनर लेज़र प्रिंटर में होता है वैसा यहाँ पे भी एक टोनर होता है, पर लेज़र प्रिंटर में लेज़र से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे किससे क्रिएट हो रहे हैं, ये डायरेक्टली एक नेगेटिव चार्ज रख दे रहा है पेपर में, तो ये डिफरेंस है लेज़र और इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, फिर क्या होता है, द टोनर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, सो पेपर हो गया नेगेटिवली चार्ज, टोनर हो गया पॉजिटिवली चार्ज, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड वो जो अट्रैक्शन से जो भी पैटर्न्स बनेंगे दैट विल बी प्रिंटेड आउट, राइट। ओके, and the next one is electrothermal. Last type of printer is electrothermal printer. ये वाला प्रिंटर बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, देखते ही आपको याद आएगा कि ये वाला प्रिंटर देखा है। लेट मी शो यू दिस, है ना, डीमार्ट वगैरह में देखा होगा इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर। सो इसमें क्या होता है, it uses heat in a dot matrix प्रिंट हेड। तो प्रिंट हेड जो है वो डॉट मैट्रिक्स वाला ही है, पर यहाँ पे हीट इस्तेमाल किया जाता है। टू आउटपुट पैटर्न्स ऑन heat sensitive paper, so this paper is also special। okay, और जो ये पेपर, ये जो प्रिंट होता है, ये कुछ दिनों बाद क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लाइट होने लगता है और धीरे धीरे वो पूरा वाइट ही हो जाता है। एंड जनरली ऐसा प्रिंटिंग हम कैश काउंटर्स वगैरह में, जब सुपरमार्केट से कुछ ख़रीदने जाते हैं तो कैश काउंटर से हमें इस तरह के प्रिंटर्स के ज़रिए हमें बिल्स दिए जाते हैं। ठीक है, so this is all about printers. So we have studied about the 5 different types of printers. Let us move on to the next topic. Our next topic is input devices. So in input devices, the first topic is keyboard. So keyboard तो सभी ने देखा होगा, what is a keyboard, है ना। So let me show you. Okay, so these are the keyboards। ठीक है, एक कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, वेरी कॉमन, होता ही होता है हर एक कंप्यूटर के साथ। ठीक है, एंड द कीबोर्ड इज़ डिज़ाइंड सिमिलर टू द टाइपराइटर, टाइपराइटर जैसा डिज़ाइन है कीबोर्ड का। बहुत सारे डिफरेंट लेआउट्स के कीबोर्ड मिलते हैं, जैसे गेमर्स के लिए अलग कीबोर्ड मिलेगा या डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी अलग अलग कीबोर्ड्स मिलते हैं, बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड इज़ द लेआउट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज़ द QWERTY। QWERTY क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि द फर्स्ट रो ऑफ
अल्फ़ाबेट्स इज़ QWERTY, तो उसके नाम से पड़ गया है QWERTY लेआउट। ठीक है, तो कुछ गेमिंग कीबोर्ड्स मैंने देखा था पहले। लेट मी शो यू। फॉर गेमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल। यस, ओके। तो जो गेमर्स हैं आप लोगों में से उनको पता होगा कि गेमिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट्स आर देयर, राइट। कीबोर्ड के बाद आता है टच पैनल। सो व्हाट इज़ अ टच पैनल? टच पैनल इज़ नथिंग बट इट इज़ द टच स्क्रीन, जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। सबके मोबाइल में टच स्क्रीन है और किसी किसी लैपटॉप में भी आजकल टच स्क्रीन आता है और टैबलेट्स वगैरह में तो टच स्क्रीन है ही। तो टच पैनल क्या करता है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड टू इनपुट, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द स्क्रीन। स्क्रीन में हम लोग जाके डायरेक्टली उसको टच कर सकते हैं, जैसे एटीएम वगैरह में भी होता है। तो स्क्रीन में डायरेक्टली हम मेनू के ऑप्शन को प्रेस कर सकते हैं, जो मेनू हमें सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज़ द टच पैनल। नेक्स्ट इज डिजिटाइजिंग टैबलेट। सो डिजिटाइजिंग टैबलेट इज़ नथिंग बट से, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा पुराना है तो थोड़ा पुराना नाम दिया हुआ है। आजकल डिजिटाइजिंग टैबलेट नहीं बोलते हैं, आजकल इसको टैबलेट ही बोलते हैं। सो टैबलेट में क्या होता है, टैब जिसे बोलते हैं, आजकल नाम शॉर्ट हो गया है टैब। जैसे कि मान लो एप्पल का आईपैड हो गया, और आईपैड के साथ आजकल वो पेंसिल भी आने लगा है, एप्पल पेंसिल। सो टैबलेट में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जो ये मैं लिख रहा हूँ साइड में, ये एप्पल के पेंसिल को यूज़ करके मैं आईपैड में लिख के बता रहा हूँ, ये जो राइट साइड में जो भी मैं लिख रहा हूँ। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डिजिटाइजिंग टैबलेट। और भी डिजिटाइजिंग टैबलेट्स और भी आते हैं, तो जैसे कि वैकॉम का आता है, दिखा देता हूँ। ये तो आईपैड में, मैं जस्ट एक बार आईपैड, तो ये हो गया टैबलेट। और ये हो गया एप्पल पेंसिल, और एप्पल पेंसिल यूज़ करके इस तरह से आईपैड में ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और एक और आता है वाकॉम बोल के, तो ये इसकी बात मैं कर रहा था, वाकॉम। तो इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेंगे, और ये जो पेंसिल आता है इसके साथ, या स्टाइलस जो बोलते हैं, तो इसको हम जब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा माउस पॉइंटर स्क्रीन पे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट देन डायरेक्टली सीइंग इन आईपैड कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद आता है माउस। माउस भी एक बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। तो माउस इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस which is used to create graphic elements on the screen such as lines, curves and freehand shapes। और माउस से हम जो मेनू है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो माउस जनरली हैज़ लेफ्ट क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन एंड मिडल scroll button। Okay, so there are two types of mouse. One is, माउस में टू टाइप्स आ जाते हैं। नंबर वन इज मैकेनिकल एंड नंबर टू इज ऑप्टिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल माउस में क्या होता है, माउस का जो नीचे एक रबर बॉल होता है, एंड विद दैट रबर बॉल जब हम माउस को हिलाते हैं वो बॉल हिलता है, एंड दैट बॉल टेक्स द पॉइंटर टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ऑप्टिकल माउस में वो बॉल नहीं होता,
मैकेनिकल माउस थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, आजकल जनरली जो भी माउस आते हैं ऑल ऑफ दोज आर ऑप्टिकल माउसेस। ओके, ऑप्टिकल माउस में नीचे अगर माउस को उठा के देखोगे तो देयर विल बी ए लाइट ग्लोइंग इन द माउस। तो मैकेनिकल माउस में माउस का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है माउस के नीचे का रबर बॉल, और ऑप्टिकल माउस में माउस का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल करता है माउस के नीचे जो लाइट ग्लो कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ ट्रैक बॉल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रैक बॉल्स। सो ट्रैक बॉल्स में पूरे माउस को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कंट्रोल द पॉइंटर विद द बॉल। जस्ट बॉल को फिंगर्स से हिला के वी कैन गो टू एनी पोजिशन ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ ए ट्रैक बॉल। नेक्स्ट इज डेटा ग्लव। डेटा ग्लव क्या होता है, लेट मी सी if I can get it on Google, data glove. Okay, so these are the examples of data gloves, and it is an interactive device which is worn on the hand, हाथ पे पहनते हैं, and it facilitates tactile sensing and fine motion control in robotics and virtual reality। इन दो जगहों पे ये यूज़ किए जाते हैं, robotics and virtual reality। Okay, after that there is light pen। let me show you light pen if it is available on Google। yeah, so this is light pen, this for example। so what is a light pen? इट इज़ ए हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाई ए केबल। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन टच द कंप्यूटर मॉनिटर विद दिस लाइट पेन। ठीक है, एंड इट विल वर्क एज ए स्टाइलस। यहाँ पे देखो लाइट पेन यूज़ करके कंप्यूटर मॉनिटर पे टच कर रहे हैं। सो यूजिंग द लाइट पेन वी कैन इंटरेक्ट विद द GUI। ठीक है, वी कैन ड्रॉ इमेजेस एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन यूजिंग दिस लाइट पेन। और ये पहले कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD में बहुत पॉपुलर था। CAD से जो लोग डिज़ाइनिंग करते थे वो लोग इसको बहुत लाइक करते थे, लाइट पेन को। देन द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर एज यू ऑल नो, स्कैनर में क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट रख दो या इमेज रख दो एंड देन स्कैन इट, मेक अ सॉफ्ट कॉपी। मतलब हार्ड कॉपी कुछ भी है उसको सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए वी यूज़ स्कैनर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है। सो पोस्ट स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ ए प्रिंटेड पेज। तो पोस्ट स्क्रिप्ट किसने डेवलप किया था? गिव मी अ मिनट। let me write PostScript here। so it was developed by Adobe in the year 1985। ठीक है, आजकल ज़्यादातर PDF फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। PDF भी Adobe ने बनाया है, बट PostScript भी बहुत फेमस फॉर्मेट है। and what it does, it describes the appearance of a printed page।
और पोस्टस्क्रिप्ट फाइल्स जो है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी एस। फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, एक्सपोर्ट जब करने जाते हो तब एक ऑप्शन रहता है सेव एज पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। ठीक है। इसके बाद का इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक तो सभी को पता है, बचपन से खेला भी होगा जॉयस्टिक इस्तेमाल करके। These are the images of different types of joystick. तो joystick में भी different types हैं. Let me write joystick. So what are the different types? Number one is digital control. Number two is glide control. And number three is direct control. This digital control, that is the number one, allows limited movement, जैसे कि up, down, left और right. तो इसमें क्या है, डिजिटल कंट्रोल में लिमिटेड मूवमेंट है। और बाकी दोनों में जैसे ग्लाइड कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल 360 डिग्री मूवमेंट। ठीक है। डिजिटल कंट्रोल में मूवमेंट होगा जैसे कि अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ओके। जॉयस्टिक्स मेनली कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर गेम्स, देन कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड फॉर एप्लीकेशन सच एज फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एटसेट्रा। The next input device we are going to talk is MICR. What is the full form of MICR? MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. और ये जनरली बैंक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग द चेक्स। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो सभी ने देखा होगा, डीमार्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। barcode reader. These are the barcode, different types of barcode readers. नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। सो डिजिटल कैमरा में क्या होता है, we capture the images. The input is in the form of images and those images can be downloaded into the computers or even mobile phones, है ना। आजकल ऐसे भी कैमरास निकल गए हैं, DSLR कैमरास, मिररलेस कैमरास, जो डायरेक्टली इमेजेस को वाया वाईफाई मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। okay? Maybe even such cameras are there which can directly post to social media like Facebook, Instagram, etc. है ना। And lastly, the final input device we have is microphone. So using microphone we can input speech
जो भी साउंड है, जैसे कि मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग किससे कर रहा हूँ? वाया माइक्रोफोन. ओके. So in this lecture we have covered what we have covered. Just एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. So we have covered in this lecture hard copy devices, in hard copy devices we studied what is half toning, then we studied the different types of printers. What are the different types? Dot matrix, then inkjet, then laser, then electrostatic and इलेक्ट्रोथर्मल. ये हमने पढ़ा है. इसके बाद हमने पढ़ा है व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस. डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस वी हैव सीन. व्हाट आर दोज? वी हैव सीन कीबोर्ड, देन टच पैनल, देन डिजिटाइजिंग टैबलेट, देन माउस. In mouse we have seen what a mechanical mouse, what is an optical mouse, then trackball, data glove, light pen, scanner, postscript, joystick, MICR, barcode reader, digital camera and microphone. And in our next class we will study about the supplementary topics. So this means that our unit 1 is finished. The supplementary topics are some extra topics given in your book. In the supplementary topics we will study number 1, what are the advantages of CRT. Then number 2, the differences between plasma panel and LCD. ठीक है. And after that I would like to add some more points to the graphic standards which we have already discussed, but मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत और थोड़ा डिस्कशन करें उसको और थोड़ा डीपली देखें about GKS, about figs and about OpenGL. तो इसको हम थोड़ा डीप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. सो अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है. एक तो डायरेक्टली यूट्यूब में इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो अगर यहाँ पे पब्लिकली कमेंट नहीं करना है तो यू कैन गो टू गूगल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम में जाओ, जहाँ पे मैंने इस वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. सो इनफैक्ट वी हैव कवर्ड, हमने ख़त्म कर दिया है यूनिट 1, and in the next lecture we are going to just revise whatever we have covered in unit 1 along with the supplementary topics and a deeper discussion on the graphics standards. Okay, so this much for this lecture. Thank you very much.